morning, students. Welcome you all in Grade Up in Commerce with Geeta Verma. Students, we were discussing about business studies of class 11, which is also said as this business studies is the foundation of commerce. So, regarding it, we have already discussed about what do you mean by business, profession, employment, their characteristics, differences between them, economic and non-economic activities, and different types of business activities. Students, in the same sequence, proceeding further, let's discuss about classification of business activities. Fine. In this chapter, we will be studying classification of business activities. Business activities can be divided into two parts. One is industry and the second one is commerce. Fine. So one by one we will be discussing further. So let's discuss about industry. What do you mean by industry? Industry is a place where manufacturing of something is done. Fine. It can be said that it is a place where the raw material is turned into the finished good or the final product which we and you all consume, right? So industry is a place where the raw material is transformed into the final product or the product which we and you can use, right? Like if we say this industry is, it is the cotton mill. Fine, this cotton mill is there. For them, the raw material is what? Cotton. Fine, and this is the industry. Fine. If this is industry, then what they have begun? It is a cotton mill in which they have taken the raw material, fine, they have processed it, refined it, transformed into the cotton clothes, fine. Cotton clothes are being made. Then how these are being made? In this, the processing part is being done. So many steps have to be followed. इसमें बहुत सारे steps होते हैं. हम कॉटन को एक प्लांट में डालते हैं, उससे उसका फाइबर बनता है, फिर उसको धागे बनते हैं, फिर उसको प्रोसेस में रंगाई का काम होता है, बुनाई का काम होता है, फिर उसमें कारीगरी नक्काशी की अलग अलग ट्रेंड होते हैं और फिर जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारे पास निकल के आता है कॉटन क्लोथ्स के फॉर्म में जो हम लोग पहनते हैं. अब ये जो कॉटन क्लोथ्स है, इसलिए जो बनाने का काम हुआ उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री. किसी भी टाइप की इंडस्ट्री हो सकती है. टेक इट एज शुगर केन. ठीक है, शुगर केन लिया हमने. ठीक है, वो रॉ फॉर्म में मिलता है. रॉ फॉर्म में बहुत सारे शुगर केन रहते हैं और फिर उसको कहाँ सेंड किया गया? इंडस्ट्रीज में, प्लांट में. बहुत ज्यादा प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं. यहाँ पे इनकी प्रोसेसिंग हुई, रिफाइनिंग हुई, कई सारे स्टेप्स हैं जो फॉलो होते गए और फिर फाइनल हमको शुगर छोटे छोटे मीठे मीठे दानों की फॉर्म में हमारे पास आ गया. फाइन, व्हाट इज दिस? सो जो इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है? एक रॉ मटेरियल ले रही है, उसको प्रोसेस कर रही है, रिफाइन कर रही है, उसको एस्ट्राम में चेंज कर रही है ताकि वो एक कंज्यूमर के काम में आ सके. विच हम डायरेक्टली कॉटन को तो नहीं पहन सकते, है ना, लेकिन जब उसी कॉटन को हम इंडस्ट्री में डालते हैं, उसको इतनी खूबसूरत उससे क्लोथ्स बन जाते हैं कि हम लोग गर्मियों के सीजन में कॉटन का बहुत ही कंफर्टेबल क्लोथ्स के फॉर्म में हम उसका यूज करते हैं. देन व्हाट इज दिस? दिस इज वन वे ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इट. अब ये जो इंडस्ट्रीज है वो हमारे कंट्री की बैकबोन भी कहलाती है. क्यों? क्योंकि दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू सो मेनी पीपल. फाइन, वेदर स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर. बहुत सारे लोगों को ये
एम्प्लॉयमेंट मिलता है इंडस्ट्रीज के थ्रू, राइट? सो you might have listened the word firm. Many times a firm is word is being used in commerce. आप अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे कि ABC started a company, ABC started a small firm. What does it firm means? Firm means one small company, but a group of firm. ये एक firm है. This is firm 2. This is firm 3. firm 4 and so on. इसका जो ग्रुप है that is known as industry. Fine. Group of firm is known as industry. आप लोग ने सुना होगा industrial area नैनी, इलाहाबाद and so many industrial belt are there. That means that is a group of so many small firm. उसको हम बोल देते हैं industry. Fine. So industry का काम क्या होता है? वो raw material लेती है, उसको चाहे वो रॉ मटेरियल हमें डायरेक्टली मिल जाता है. डायरेक्टली कैसे मिलता है? जैसे कि सपोज हमारी कोई जूस बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, या फिर जेम्स बनाने की फैक्ट्री है, तो जो हमारा रॉ मटेरियल है वो फ्रूट्स है. फ्रूट्स हमने फार्मर से ले लिए, ठीक है, और उनके थ्रू को जो एप्पल मिले, ऑरेंजेस मिले, पपाया मिले, बनाना मिले, जो भी मिला हमें फ्रूट्स के फॉर्म में मिल गया, तो वो हमारा क्या हुआ? रॉ मटेरियल हुआ. उसका हम ऑरेंजेस का जूस बना रहे हैं, एप्पल जूस बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, वो हमारा क्या है? जूस के लिए हमारा रॉ मटेरियल इज इजीली वी आर गेटिंग इट. फाइन. कुछ ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं जो हमारे पास डायरेक्टली मिल जाते हैं और हमें इंडस्ट्री में हमें उसको काम, जैसे कॉटन का एग्जाम्पल लिया, शुगर कॉर्न है, ठीक है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. खेतों में किसानों ने उगाया, वो खुद ब खुद लेके आ गए हमारे प्लांट पे, शुगर मिल में, या फिर हमने उनसे खरीद लिए प्लांट, वो शुगर केन. अब हमने क्या किया? हम मिल्स इंडस्ट्री ने उसको प्रोसेस किया और उसके जो है शुगर केन शुगर बना लिया, या फिर गुड़ के फॉर्म में मिल गया, ठीक है, गुड़ मिल गया, चीनी मिल गया, जो भी है, मतलब उनके जो मीठे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं दैट आर बीइंग अवेलेबल. फाइन. तो दिस इज द वर्क ऑफ इंडस्ट्री. अब ये इंडस्ट्री भी कई तरह की होती है. चलिए अब इंडस्ट्री के बारे में और जानकारी हम लोग पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रीज को भी हम 3 फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं. लेट्स रीड इट हाउ. यस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. Industries can be further divided into 3 parts: primary industries, secondary industries, and tertiary industries. Primary industries can further be specified into 2 parts: extractive industries and generating industries. Primary industries are those industries which take the raw material from the nature or from the raw form or from the very first level. Fine. Like animal husbandry is there. Right? Poultry farm is there. These industries are either engaged in the extraction of something. जैसे कि extract करना है, extractive. Extract word आ रहा है, जैसे बोलते हैं extract करना है किसी चीज को. तो जैसे ये extractive industries हैं, जैसे this is our earth, and in our earth there are so many types of metal, fossil fuels, mineral oil, so many things are being buried inside the earth crust. So what happens? These primary industries, these extractive industries, ये लोग क्या करती हैं? ये जो हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर ये सारे जो मेटल्स हैं या क्रूड ऑयल है, कुछ भी है जो भी हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर मिल जाएगा उनको, आयरन, बॉक्साइड, एल्यूमिनियम, जो भी मिल रहा है, उसको वो हाईटेक मशीनरी से बाहर निकालने का काम करती है. ठीक है, एक्सट्रैक्ट करती है. ये अर्थ क्रस्ट के अंदर से, दिस इज अर्थ क्रस्ट, और अर्थ क्रस्ट के अंदर से उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम करती हैं हमारी. This involves huge type of machines. Machines are being used. Different tools and equipments होते हैं जिसके थ्रू ये नेचुरल, जैसे बोलते हैं ना कि कोयले खान है, फिर सोना निकालने का काम, हीरे निकालने का काम, या आयरन निकालने का काम, ये सारे क्या है, जो धरती के अर्थ क्रस्ट के अंदर जो भी चीजें अवेलेबल होती हैं वो उसको निकालने का काम करती है. कौन करती है? ये हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज करती हैं. अब ये देखिए, इधर अर्थ के अंदर ऑलरेडी ये चीजें अवेलेबल थी. फाइन.
तो ये क्या हुआ, ये इनका हो गया बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे ये काम जो होता है वो किया जाता है। दैट्स व्हाई दिस कम अंडर द प्राइमरी इंडस्ट्री। देन comes जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्रीज मीन्स कुछ चीज जनरेट करना, टू जनरेटिंग समथिंग न्यू। इसमें क्या होता है, ये क्या करती है कि ऑलरेडी जो चीजें अवेलेबल है उसको और हम बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं प्राइमरी लेवल पर ही। जैसे कि हमारे रिवर्स में, ओशंस में हमारे रिवर्स में सी हुए, ओशंस हैं, बहुत ज्यादा फिशेस मिल जाएंगी, ठीक है, फिशिंग और बहुत सारी सी फूड्स वगैरह मिल जाते हैं। तो ये क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज का मतलब कि इन सबको भी एक्सट्रैक्ट करना, ठीक, और फिर उसको जो मछुआरे होते हैं उसको सेल करते हैं, चाहे इंडिया में करें या अब्रॉड करें, फाइन। तो दिस वर्क इज डन, वरना स्पेशली एक पॉन्ड बना लेके उसमें बहुत ज्यादा फिशेस को एक साथ रखा जाता है और फिर उसको सेल अप किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह की इंडस्ट्री हुई, बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का भी एक जरिया हो जाता है। इट्स ऑल्सो वन ऑफ मीन्स ऑफ गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू सो मेनी यंग यूथ दैट एट द प्राइमरी लेवल they can dig a huge ground pond and in which they can rear this kind of fishes और फिर इसको वो निकालते हैं और उसको सेल करते हैं and they in return earn money through it. Fine. So it is also one of the way to earn money. And apart from this, poultry farms are there. Fine. उसमें क्या करते हैं, अंडों को के लिए होता है या फिर फॉर इट इज आइदर फॉर एग और आइदर फॉर मीट पर्पस, ठीक है। पोल्ट्री फार्म खोली, उससे बहुत सारे मुर्गियों को रखा, उसमें से क्या किया, मुर्गियां अंडे भी दे रही हैं और मीट का भी काम हो रहा है। या फिर ये सब क्या है, पोल्ट्री कल्चर हुआ, पिस्सीकल्चर हुआ एंड सो मेनी अदर टाइप ऑफ कल्चर्स आर आल्सो देयर in which it also provide employment to so many young youth, and this industry is worked at the primary level where the raw material is already available in the nature, or either they extract it from the nature and then these primary industries provide the raw material to the secondary industry. Fine. अब देखिए ये प्राइमरी मशीन इंडस्ट्री ने तो यहाँ से निकाल लिया प्रोडक्ट को, लेकिन ये जो प्राइमरी इंडस्ट्री से सपोज निकला है क्रूड ऑयल, क्या निकला है, क्रूड ऑयल निकला। अब इस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करना, उसमें से कई चीजें निकालना, इसमें से में पेट्रोल भी मिल जाएगा, केरोसिन ऑयल भी मिलेगा, डीजल भी मिलेगा। तो ये क्या है, ये सबको बाइफरगेट करते जाना और प्रोसेस करना और रिफाइन करना, all these work are being done by the secondary industry. Fine. Primary industry provides the raw material to the secondary industry, with the secondary industry make it or process it or refine it, mold it into the final product. Fine. अब जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या हुआ कि जो ऑलरेडी चीजें अवेलेबल है नेचर की, जैसे फिशेस ऑलरेडी है, तो हमने क्या किया, चलो थोड़ी फिशेस निकाली, एक्सट्रैक्ट की और हमने मछुआरे जो हैं उन्होंने उसको सेल कर दिया, उनकी हो गई इनकम। या फिर हर जगह तो सिर्फ रूट या कोस्टल एरिया तो अवेलेबल नहीं होता, रिवर्स में हो जाएगा, तो या फिर क्या कर सकते हैं, एक पॉन्ड पूल देख किया, उसमें फिश के कुछ ब्रीड्स डाले, उनको जो उनका फूड होता है प्रॉपर एटमॉस्फेयर दिया, फूड देना, उनका न्यूट्रिशन का ख्याल रखना, सब कुछ। और फिर जब ये बहुत ज्यादा आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, इनको लेके गए, उनको भी हमने सेल किया एंड वी आल्सो गॉट द मनी। सो दिस वन इज नोन एज पिस्सीकल्चर। या फिर क्या कर दिया,
अंडे लिए बहुत सारे, मुर्गियां पालन खोल लिया, उसमें हमें अंडे के अंडे मिल गए, मीट भी मिल गया और हमारे पास पैसे भी आ गए. तो these are the industries which are being available, which also provide employment and work at a grassroots level or the primary level where the goods are being available and these are being transformed into one form to the another form. Fine. Apart from the transforming, they also provide the raw material to the secondary industry. Now, what does the secondary industry do? Secondary industry take the raw material from the primary industries, they further process it, further refine it and they make a final product. क्योंकि देखिए यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने का काम तो करती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, फाइन, लेकिन उसको हमारे पास जैसा पेट्रोल या डीजल हम लोग अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं वो ऐसा होता नहीं है. होता तो बिल्कुल क्रूड ऑयल और बहुत ही स्मेली सब्सटेंस होता है. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ने सिर्फ उसको निकाल दिया, बाकी का काम करती है सेकेंडरी इंडस्ट्री. उसके बाद आता है हमारा टेरिस्ट्री इंडस्ट्री. टेरिस्ट्री इंडस्ट्री जिसको हम ये भी कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो द सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, इंश्योरेंस देना, ठीक है, हमारे रिस्क को कवर अप करना. तो ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे पास बिजनेस में अवेलेबल चाहिए. अब देखिए प्राइमरी इंडस्ट्री थी कि भाई हमने तो चीजें एक्सट्रैक्ट करके रखी, लेकिन इन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है. तो ये कैसे है? इसके लिए हमें चाहिए कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज नीडेड बिटवीन प्राइमरी इंडस्ट्री एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्री. ठीक है, इनका रॉ मटेरियल है, इनको यहाँ तक पहुंचाना है, इसके लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए. ठीक है भाई, आने और ले जाने में कहीं हमारा एक्सीडेंट हो गया या फिर कहीं आग लग गई या फिर कुछ भी हो सकता है, तो उसको हमें रिस्क को कवर अप करने के लिए हमें इंश्योरेंस चाहिए. ठीक है, काम करना है, हमें स्टार्टअप करना है, तो उसके लिए पैसे भी चाहिए. मनी कहाँ से लाएंगे? बैंकिंग सेक्टर से लाएंगे. तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं. तो ये जो टेरिटरी सेक्टर है, दैट प्रोवाइड्स अस द सर्विस. प्राइमरी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड द रॉ मटेरियल टू द सेकेंडरी इंडस्ट्री. Secondary industry further take it, process it, refine it, and in return, tertiary industries provide them the services, both to the primary industries and the secondary industries. I hope you have understood this concept. So this was the main about primary industries, which can be divided into two parts: extractive industries and the genetic. Now comes the, we will be studying more about the secondary industries. Okay. Yes, students. Now we will be discussing about secondary industries. We have already discussed about the primary. Now, in secondary industries, it can further be divided into two parts. One is manufacturing industry and the constructive industries. Manufacturing industries can further be divided into two parts: consumer goods and the industrial goods. Right? Consumer goods. As from the name itself, manufacturing. Manufacture means किसी चीज को हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. फाइन. तो उसमें क्या है? कंज्यूमर गुड. कंज्यूमर कौन है? उपभोक्ता, जो कंज्यूम करता है सामान, हम और आप जैसी आम जनता. तो ये कंज्यूमर गुड में हम जो भी हैं, हम इफ आई एम यूजिंग दिस बोर्ड हुआ, सपोज दिस पेन इज देयर, पेन. फाइन. सो कुछ भी हम यूज कर रहे हैं. फाइन. कुछ भी हम यूज कर रहे हैं, तो ये कैसे है? दिस आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉर द कंज्यूमर गुड. दैट मीन्स द गुड्स व्हिच आर डायरेक्टली बीइंग यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स. फाइन. सो ऑल दीज थिंग्स, मेनी थिंग्स आर देयर: पेन, शैम्पू, sharpener, cutter, whatever you are using, these are the goods which are being used to the consumer, used by the consumer. So all these are the directly goods. हमें क्या पेन लेके आते हैं और वी आर स्टार्ट राइटिंग. फाइन. सोप लेके आए, वी टेक अ बाथ. टूथपेस्ट लाए, ब्रेड लाए, जैम लाए, वी स्टार्टेड ईटिंग. वी डोंट हैव टू फर्दर डू एनी काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन टू इट. फाइन. उसमें हम कुछ और सोप में बनाने नहीं लगते कि इसमें अलग सा फ्लेवर हम बनाएंगे. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है. Whatever is available, it is ready-made, well set, well ready. What one has to do, just take that product and start using it. Right? So these are the consumer products which are being made by the manufacturing industries for the
consumer so that they can use it. It is will be providing them the service. Second one is industrial good. Industrial goods means the goods which are being made for industrial purpose. ठीक है, गुड्स बनाए हैं लेकिन वो कंज्यूमर के लिए जो बनाए थे वो तो कंज्यूमर ने अपना इस्तेमाल करेंगे. अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बना रही है वो कंपनियों के लिए सामान बना रही है. उसको भी हम कई तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि टूल्स बनाए हैं, बहुत हैवी मशीनरी बन रही है. ठीक है, तो उसको हम अपने घर में लेके या तो सेटअप करेंगे नहीं, हमारे लिए तो है नहीं किसी काम का. What we need to concern, we mean the consumer and being concerned about the final product. Right? So what is this? These are the different types of industrial goods. Let's see what are they. Like analytical industries. What are these analytical industries? These industries take the raw material from the primary industries. हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस किया था. जैसे कि हमारे पास है क्रूड ऑयल है अवेलेबल है हमारे पास. फाइन, ये प्राइमरी इंडस्ट्री ने हमको दिया अपना एक्सट्रैक्ट करके, लेकिन वो बहुत ही थिक और बहुत ही स्मेली डार्क सब्सटेंस होता है. तो उसको क्या करना है, हमें ऐसा बनाना है सो दैट विच कैन बी यूज्ड बाय द कंज्यूमर, रेडीमेड आइटम. तो इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा हैवी मशीन्स वगैरह मशीनरी वगैरह लगाई, प्लांट में ले गए, सेटअप किया, जो भी केमिकल को रिएक्शन करना था. अब इसने पूरा प्रोसेस करके, आई थिंक सो इट इज अ पार्ट ऑफ साइंस इन क्लास 8 आल्सो, यू विल बी स्टडीइंग इट और यू माइट हैव स्टडीड. तो इसमें से क्या, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल लिए. हमने इसमें से पेट्रोल ले लिया, ठीक है, केरोसिन ऑयल ले लिया, डीजल ले लिया, और जो भी हम इससे निकाल सकते थे. तो ये क्या है, ये हमें मिला रॉ मटेरियल from the primary industry and we have processed it, refined it, and now the analytical industry is doing so. Fine. अब एक आता है synthetic industry. What does they do? Like cosmetics are there. Cosmetics के you might have seen the advertisement. So many things are being added. उसमें दिखा रहे कई चीजों को मिला के बना है. कि अगर आप एक कॉस्मेटिक्स में क्रीम लेने जाते हैं तो मतलब बोलते हैं इसमें हल्दी है, बेसन है, गुलाब है, चंदन है, बहुत ही फेयरनेस क्रीम है, SPF 15 है, मॉइस्चराइजिंग है. तो व्हाट इज दिस? सो मेनी इंग्रेडिएंट आर बीइंग added to make one product. Fine. So what is they are doing? So many things are being added one after the another. इसमें गुलाब जल भी मिला है, रोज वाटर मिला है, SPF 15 is there, मॉइस्चराइजिंग इज देयर, कहिए तो एलोवेरा भी मिला हुआ है. तो ये सब क्या है, सब बना के क्या चीज बनी, एक चीज बनी, क्या बनी, कॉस्मेटिक. इसी तरह से सोप के भी बहुत सारे ऐड आते हैं, यू माइट हैव सीन, कि उसमें हम दिखाते हैं कि हल्दी, वो नीम है तो हल्दी है, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला हुआ है, तो मॉइस्चराइज करेगी, नरिश करेगी, मॉइस्चराइजिंग है. सो मेनी थिंग्स आर बीइंग एडेड. सो क्या है, वैल्यू एडिशन इज देयर इन वन प्रोडक्ट. अल्टीमेटली हम खरीद क्या रहे हैं, एक हम सोप खरीद रहे हैं या फिर हम एक कॉस्मेटिक की क्रीम खरीद रहे हैं, लेकिन उसी में बहुत सारी चीजें जो है उसमें मिली है. सो मेनी थिंग्स आर बीइंग एडेड टू मेक वन प्रोडक्ट. फाइन. अब इसमें क्या है, ऑलरेडी द थिंग्स आर देयर, वी आर जस्ट डिवाइडिंग इट एंड इट इज द जस्ट अपोजिट ऑफ इट. फाइन. दिस इज द सिंथेटिक इंडस्ट्री. देन द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. प्रोसेसिंग, जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि प्रोसेस करना किसी चीज को. हाउ डज इट, जैसे टेक्सटाइल है, we have taken the example from the cotton itself, कि कॉटन लिया तो हम लोग डायरेक्टली कॉटन तो पहन नहीं सकते. व्हाट वी हैव डन, उसमें इतनी सारी चीजों को एडिशन किया जाता है, कलर भी मिलाया, फिर उसके फाइबर को भी चेंज किया, सब कुछ किया, उसमें चिकन का वर्क भी सही कहिए तो कर दिया. ठीक है, तो इसमें क्या है, वो रेडीमेड आइटम हमारे लिए अवेलेबल हो गया. बट दैट फॉर बीइंग दैट प्रोडक्ट वन हैज टू पास थ्रू सो मेनी स्टेजेस. कई स्टेजों से उसको गुजरना पड़ा है. आयरन इंडस्ट्री एंड स्टील, हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट किया प्राइमरी इंडस्ट्री में, लेकिन आयरन जिस तरह से मिलता है और हम लोग अपने आयरन के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी है, टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस फॉर्म में तो मिला नहीं है कि आयरन और स्टील में ऐसे मिल गया है. उसको मोल्ड किया गया, रिफाइन किया गया, प्रोसेस किया गया, बहुत सारी चीजों में उसमें स्टेजेस से उसको गुजरना पड़ा. देन वी हैव गॉट द फाइनल प्रोडक्ट. फाइन. So that means the processing has been done. Then
द लास्ट वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग मतलब किसी चीज को असेंबल करना, जैसे कि कहते हैं ना सारे इक्विपमेंट्स लेके आए कि उसमें पिक्चर ट्यूब चाहिए तो टोनर चाहिए, दिस एंड दैट जो भी अवेलेबल है, फिर हमने क्या बना दिया, अल्टीमेटली हमने टेलीविजन वी हैव मेड, राइट। इसी तरह से हम कंप्यूटर्स के भी पार्ट लेके आए और सारी कंप्यूटर्स को इकट्ठे जोड़ दिया, तो हमने एक कंप्यूटर खुद से बना लिया। मतलब सब नहीं कर सकते ऐसा, द पर्सन व्हिच इज हैविंग द नॉलेज ऑफ इट कि वो किस तरह से सेटअप होगा ईच एंड एवरीथिंग, सो दैट पर्सन कैन डू इट। तरह तरह की चीजें, कहीं से पिक्चर ट्यूब लेके आए वहां पे मिलते, कहीं पे कुछ मिल रहा है, कई अलग अलग पार्ट्स हैं, हमको पता है कि हाउ डज इट वर्क, आई हैव स्टडीड फॉर इट, देन आई कैन join together all those different parts into one thing to me to assemble my own television, fine। उसी तरह से हम कंप्यूटर का भी ले आए, मदरबोर्ड कहीं से ले आए, कहीं से स्पीकर ले आए, कहीं से सीपीयू ले आए, यूपीएस ले आए, और जो भी चीजें चाहिए थी सब कुछ लेके आए और हमने उसको करेक्टली उसको जोड़ लिया, हमने खुद से असेंबल कर लिया, फाइन। सो व्हाट इज दिस, दिस आर नोन एज द असेंबलिंग इंडस्ट्री। वो लोग क्या करते हैं, हम का मतलब ओवर इट मींस द इंडस्ट्री, ओके। ये खुद मत करने बैठ जाएगा कि नहीं मैम ने कहा तो हम खुद से बना लेंगे ये टीवी, इट्स नॉट लाइक दैट, दीस आर द इंडस्ट्रीज व्हिच यू आर डूइंग। सो ये हमने सारे पार्ट्स ले आए, इंडस्ट्रीज दे हैव ब्रॉट द गुड्स एंड दे हैव असेंबल इट एंड मेक द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज द टेलीविजन और द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज द कंप्यूटर एंड so on, fine। So these are the type of manufacturing industries where the some or the other thing is being made, either we are making the consumer goods or we are making the industrial goods, and industrial goods can further be made into the four types, industrial goods in four types, analytical products industries, crude oil से लेके सबको बाइफरकेट करके अलग अलग कर दिया और यूज कर लिया, सिंथेटिक में कई चीजें मिला के हमने एक प्रोडक्ट बना लिया, प्रोसेसिंग में हमने एक रॉ मटेरियल लिया उसको कई तरह से प्रोसेस किया और कई चीजें बना ली, ठीक है। असेंबलिंग में क्या करके लाए, कई पार्ट्स अवेलेबल थे उसको लेके आए और जोड़ के एक अच्छा सा सामान बना लिया, फाइन। आई होप दिस मच मस्ट बी क्लियर। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्ट करना किसी भी चीज को क्या होता है, कंस्ट्रक्शन साइड इज अवेलेबल, कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, दैट मींस दे आर दिस इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टिव वर्क। जैसे हमारे पास रोड बने होते हैं, ठीक है, डैम है, डैम आर बीन मेड, कैनाल्स आर बीन मेड, फाइन, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, बिल्डिंग, सो मेनी थिंग्स आर बीन मेड। तो ये क्या है, ये सारी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज में आती है कि ये सारे काम कंस्ट्रक्टिव काम होते हैं। देखिए ये सब जो काम होते हैं, these are not the work की once we have started and it should be completed after 1 month. It takes so many years to construct it. जो roads, canal, dams, flyovers, बड़े-बड़े malls वगैरह हम देखते हैं, these are the industries, these are the things which require quite a long period of time for the constructive purpose. Fine, at least 5 years, 10 years have been going. Then what happens? It takes time because these are quite huge contacts, so it takes time. So these are known as the constructive industries which are engaged in producing something constructive for the benefit of the consumer. Now the last industry is the tertiary industry, or we can say the service industry. Fine. सर्विस इंडस्ट्री जैसे कि नाम से क्लियर है, ये सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है, फाइन। अब इनका काम क्या रहता है, जैसे कि वेयर हाउस लगा देना, ठीक है, हमने अपने सामान को बनाया, ओके। लेट्स प्रोसीड फॉर द इन द नेक्स्ट टॉपिक। यस फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लास्ट इंडस्ट्री और द tertiary और द सर्विस इंडस्ट्री। एज वी फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज क्लियर that service means सेवा भाव या सेवा करना, किसी लोगों की सर्विस प्रोवाइड करना। तो ये कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि ऐसा कोई प्लांट लगा हुआ हो और वहां पर काम चल रहा हो मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोसेसिंग का। इट इज नथिंग लाइक दैट। ये सर्विस है, सेवा का भाव या सेवा प्रोवाइड करने का काम है। तो ये इस टाइप की इंडस्ट्री है कि जो चलती फिरती रहती है। लेट्स सी हाउ। लास्ट लाइक ट्रांसपोर्ट इज देयर, fine, so many transport services are being available
तो ये क्या करती है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन वन पार्ट ऑफ कंट्री। मान लीजिए यहाँ से इन्होंने ऑरेंजेस लिए उड़ीसा से, फाइन। उड़ीसा का ऑरेंजेस पूरे ट्रक में लोड होके जाता है यूपी में, और वहां पे प्लांट बना हुआ है, और वहां पे जूस का प्लांट है, और वहां पे काम चल रहा है, ठीक। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है थ्रू ट्रांसपोर्ट, फाइन। हमारा रॉ मटेरियल यहाँ पे था और हमारे पास काम यूपी में हो रहा है, फाइन। अब इस काम को करने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ी, लेकिन इसमें यहाँ पे इनके बीच में कोऑर्डिनेशन तो चाहिए। सॉरी, कि वन हाउ मच प्रोडक्शन इज नीडेड, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन चाहिए कि आपस में कोऑर्डिनेशन हो, कम्युनिकेशन भी चाहिए होता है। अब यहाँ पे इनको पास पैसे चाहिए, सपोज और भी काम करना चाह रहे हैं या फिर बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, और one's buy to buy the raw material, or one has to buy the startup a factory or a firm. So what does the person need? The person need to have the banking as a service. आजकल क्या है, हर जगह डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आप डायरेक्टली आपके बैंक में से पैसे कट जा रहे हैं, दूसरे के बैंक में पैसे ट्रांसफर हो जा रहे हैं। तो ऑल दीज आर व्हाट? These are the services which are being provided by the bank to the general public, so that they can easily do and perform their business activities smoothly. Then is insurance. In between there are so many chances of accident are there. That means risk is always there. So this risk is being covered by the insurance. कि आपको यहाँ पे पैसे चाहिए थे, बैंक से तो आपको बैंक से मिल गए, उसके बाद आपका जो रिस्क था that has been covered by the insurance company. Then is warehousing. हमने सामान यहाँ से लेके जाने के लिए वहां पे इकट्ठे तो हम सारा प्रोडक्शन कर नहीं डालेंगे, कितना सारा सामान है चलो जी प्रोडक्शन कर लिया, या फिर जो हमारा रॉ मटेरियल है वी नीड दैट वी शुड बी प्रिजर्विंग इट, कंज्यूमिंग इट after 1 year or after 6 months we have to consume that product. But till 6 months, how can we save our product so that its quality does not affect? So we need to keep it into a warehouse where goods are being kept at a proper temperature which does not have affect their quality. Fine. अब भाई हम जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए हमें ऐड करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है कि भाई दिस वन इज बीइंग मेड बाय मिस्टर सो एंड सो, सी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, हाउ इट इज बीइंग बेटर देन द अदर पर्सन मींस अदर प्रोडक्ट्स, फाइन। सो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग कवर्ड इन द एडवर्टीजमेंट। ट्रांसपोर्ट से हमें फैसिलिटी मिल जाती है कि कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, कहीं भी हमें रॉ मटेरियल मिले, वी आर देयर टू continue our company without any problem. Once our company has made the product, we can easily sell it to the open market with the help of transport. Then comes the banking. If we need to have bank, if we need to have money, financial requirement, that is being fulfilled by the banking sector. Our risk is being covered through insurance. Warehousing, we can keep our goods safely and use it, process it, or sell it whenever we feel like. Advertisement, how our product is being better than our competitor, or what are the qualities and characteristics of our products, how it is beneficial for the general public. All these things is done through the advertisement. So this is the industrial sector, which is one of the leading sector in the 21st century, because in this competitive world, if one company is able to provide good service, only then that company is able to flourish higher and higher. I hope you have understood all these things. Now we will be studying about the function of commerce. What are the functions which are being performed by the commerce? So before studying all this,
let's discuss what do you mean by commerce. Commerce means a ways or mean which makes the things easier both for the consumer and for the producer. Right? Let's see how. It removes the hindrance or the barrier which is available between the person. How? Let's see. One person, that means the manufacturer is there in one part of the country and the consumer is there in the another part of the country. There is a huge gap between them. But through communication or through this commerce availability, this gap is no more. हाँ एक जगह सामान बनाया जाता है, ठीक है, और उसका कंजम्पशन पूरे ऑल ओवर इंडिया होता है. हाउ दिस इज हैपनिंग? बिकॉज कॉमर्स removes the hindrance of people. Consumer is manufacturing the product at one place and the producer is producing the good at one place and the consumer throughout the country are using it. There is no barrier of place कि हम अपना प्रोडक्ट यूपी में बना रहे हैं तो हम महाराष्ट्र तक हमारे नहीं जा पाएंगे. Not at all. It also provides employment opportunity to so many people. Place utility, raw material. Suppose हमें jams के लिए we want that we should be using very fine quality of apples which are available in Kashmir. वो place हमारे लिए कोई बैरियर नहीं रखता. हम रॉ मटेरियल चाहे जहां से मंगा सकते हैं. कैसे मंगा सकते हैं? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, अवेलेबल है. हम चाहे जहां से मंगाएंगे और उसको प्रोसेस करेंगे और पूरे इंडिया में कहीं भी हम बेच सकते हैं. एक्सचेंज का भी कोई इशू नहीं है. कहीं पे भी आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं. बैंकिंग फैसिलिटीज देयर. ये सारी कैसे हटी? बैंक के थ्रू ये वाली दिक्कत भी हटेगी. आप चाहे मोबाइल टू मोबाइल पैसे ट्रांसफर हो जा रहे हैं, अकाउंट में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर हो जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन करना भी इजी हो जा रहा है. तो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल. नॉलेज, हमारे सामान के बारे में नॉलेज कैसे मिलेगी लोगों को? एडवर्टीजमेंट के थ्रू. थ्रू आवर एडवर्टीजमेंट वी आर एबल टू make the public assure that what are the qualities of the product which we have made. अगर वो एक कंज्यूमर के लिए अच्छा प्रोडक्ट है तो उसके क्या क्या बेनिफिट है, we can easily tell it to the consumer, and this knowledge is provided through advertisement. Through advertisement only we come to know so many things about the product. So it is through advertisement. Time. There are certain things which are being grown at once in the season, like mangoes are there, pulses, wheat, grains. These are being produced once in a year, but their consumption are gone throughout the year. होता है कि नहीं? जैसे कि मैंगो का एक पर्टिकुलर सीजन है कि भाई गर्मियों में मैंगो अवेलेबल होंगे, लेकिन जो हम पिकल्स खाते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक्स हम सब पीते हैं, ठीक है, और जैम्स में यूज हो रहा है, जेलीज में यूज हो रहा है, कैंडीज बनती हैं. सो मेनी थिंग्स आर बीइंग मेड फ्रॉम मैंगो इटसेल्फ. तो ये रॉ मटेरियल व्हाट इज? मैंगो. देन टू इट इज अ सीजनल, ओनली इन समर इट इज अवेलेबल. तो what can the industry think? It does not think that yes, I will be opening my plant in summer, only then I can produce all these different type of things. It is not possible. This hindrance is removed through warehousing. वेयरहाउस में क्या होता है? हम अपने सामान को लेके आते हैं, स्टोर कर देते हैं एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे, where no harmful effect can be there to our products, and throughout this we can take it as a raw material, and throughout this we can use it in our industry. In our industries we will be producing throughout year. Candies manufacturing will be done, we will be selling it. Pickles we will make, we will be selling it. We will make cold drink and we will be selling it.
and those mangoes which are a seasonal product. Okay, so this time is no foundation at all. Whatever we want to do, we can do it because we are having the warehousing facilities through which we can easily keep our train properly without any kind of disturbance. Then risk. Risk is covered by insurance. And apart from this, there are certain other products, let's come to the same point, like coolers, ACs, refrigerators. All these are being used once in a season. Only in summer season we use it. But for the consumption, this is for the consumption purpose. But the manufacturing of this, all these products are gone throughout the year. Throughout the year, these companies keeps on producing the thing. So where do they need to store it? They will again keep it in the warehouse where they are going to store it. Okay. Now risk. Risk is always involved in your life. Okay. If you are eating food, even though the risk is there, if we are taking food, the risk are there. We are traveling, the risk is there. Life is full of risk. Fine. But this doesn't mean that we are not going to do anything. This risk is being covered by the insurance. Whatever the risk is there, we can take the insurance policy, accidental policy, fire insurance are there, warehousing fuel. So many kinds of insurance are there depending upon the policies. We can take and get us insured so that we don't have to depend on the other person for anything more. Communication is there to provide any what the manufacturer is producing. We are setting it over here and we can say yes, this thing is available in the market, let's go and buy it. So many kind of services are being provided on the Amazon, Flipkart, and online purchasing and marketing is there. So that means people and our places are no barrier or no hindrance, no verification is there. वो कोई भी बाधा उत्पन्न आजकल के जमाने में नहीं करते जब तक हमारे पास कॉमर्स है, क्योंकि हम एक फोन घुमाते हैं और हमारे पास वो चीज अवेलेबल हो जाती है, चाहे वो पिज्जा से लेकर कुछ भी हुआ. कैसे हुआ? क्योंकि हमारे पास ये सारी चीजें हैं जो अवेलेबल है, जो हमारे लिए सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है. What we need to do, we have to take the advantages of it and we have to proceed further. Fine. So this was the function of commerce. So let's proceed further in the another topic.